ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 46 prayers of Kunti Maharani and Parikshit Maharaj से व्यासदेव ईश्वरे जाने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपिति न बुध्यता सुचार्पिता। व्यासदेव ईश्वरे जाने कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपिति न बुध्यता सुचार्पिता। पूजा माता जी पढ़ो श्लोक। व्यशधैर ईश्वरे जाने कृष्ण अद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिः से नभूदेता सुचर्पित। Arti, are you able to read the shloka? Okay. Word to word meaning. Vyasa Adhyaha, by great sages headed by Vyasa. Ishwaraha, the Almighty God. Iha, by the will of Janehe, by the learned. Krishnena, by Krishna himself. Adbhuta Karmana, by one who performed all superhuman work. Praboditaha, being solaced. Api, although he has failed by evidences from the history. Na, not. Abudhyata, satisfied. Sucha alpta, distressed. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. King Yudhishthira, who was much aggrieved, could not be convinced, despite instructions by great sages headed by Vyasa and the Lord Krishna himself, the performer of superhuman feats, and despite all historical evidences. तो कल हम लोगों ने देखा that Krishna was ready to leave Hastinapur and was about to go to Dwaraka. उस समय युधिष्ठिर महाराज उनको रोकते हैं, कहते कि चलिए ठीक है आप रुकिएगा मत, मगर कुछ दिनों के लिए और रुक जाइए। तो इस तरह से उनको बोलते हैं। तो देखा हमने कि भगवान के प्रेम की वजह से भगवान क्या रुक गए वहां पे। तभी यहाँ पे क्या है तात्पर्य में पढ़ेंगे। The pious king Yudhishthira was mortified because of the mass massacre of human beings in the battle of Kurukshetra, especially on his account. Duryodhana was there on the throne and he was doing well in his administration. And in one sense, there was no need of fighting. But on the principle of justice, Yudhishthira was to replace him. The whole clique of politics centered around this point, and all the kings and residents of the whole world became involved in this fight between the rival brothers. Lord Krishna was also there on the side of King Yudhishthira. It is said in the Mahabharata Adi Parva 225 that whatever the number it is, I don't know how to count this. It's a very big number. Once again, 640 lakh men, or maybe the crores you can see, were killed in the 18 days of battle of Kurukshetra. Some hundred of thousands were missing. Practically, this was the greatest battle in the world within 5,000 years. अब कई लोग एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज थे, वो लड़ाई के बाद में ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़े मतलब पाप किया है। मतलब ये जितना आप ये नंबर देख रहे हो, महाभारत के आदि पर्व में बताया जाता है इतने लोग मारे गए सिर्फ 18 दिनों में। क्या था? राज्य लेना था। राज्य शासन कौन कर रहा था? दुर्योधन। मगर दुर्योधन को रिप्लेस करना था, क्यों? क्योंकि वह धर्मी था और एक क्षत्रिय की ड्यूटी है कि धर्म को स्थापित किया जाए। तो उसके लिए अब ये राइवलरी थी दो भाइयों में, इसके बीच में दुनिया जहां से जितने भी राजा थे सभी ने इस युद्ध में भाग लिया, बट फिर जो कुरुक्षेत्र का था। और दोनों साइड में से किसी के भी कोई बचा नहीं, सिर्फ 5 पांडव ही बचे थे एंड में। जितने भी ये लोग थे सब मारे गए, सारे के सारे, और कुछ तो मिसिंग ही हो गए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो युद्ध था महासंग्राम, ये 5000 सालों में सबसे बड़ा एक विश्व युद्ध था। This mass killing simply to enthrone Maharaj Yudhishthira was too mortifying. So he tried to convince with evidence from history
by great sages like Vyasa and Lord himself that the fight was just because the cause was just. तो महाराज जो युधिष्ठिर होते हैं तो बड़ा अपने आप को कोसते हैं कि मतलब विलाप करते हैं कि मुझे नहीं करना चाहता, सिर्फ एक गद्दी के लिए इतने लोगों का मर्डर हुआ। ओ कृष्णा, इट वाज लाइक कि इतने लोग मारे गए सिर्फ केवल 18 दिनों में। मतलब एक तरह की, अब ऐसे कोरोना के हम देख रहे हैं कि कितने दिन में, रोज दिन के कितने लोग मारे जाते हैं। तो इट्स लाइक सीम्स लाइक कि बस दुनिया खत्म ही हो रही है। तो सिर्फ 18 दिनों में इतनी दुनिया खत्म हुई। तो युधिष्ठिर महाराज काफी दुखित थे, मगर व्यासदेव जी उन्हें बताने लगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको बोला कि देखो, ये सही कारण के लिए था, धर्म की स्थापना करनी तो ये करना जरूरी था। बट महाराज युधिष्ठिर वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। और देखो क्या होता है, देखिए भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में है कि नहीं, है ना, भक्त के हृदय में। तो ठीक है, कन्विंस है नहीं बन, ठीक है, तो दामी बुद्धि योगंदम, बुद्धि कहाँ से आ रही, भगवान कृष्ण से आ रही। और भगवान कृष्ण ही बाहर से बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, नहीं नहीं ये सही था, सही हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। और अंदर से मगर युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं करने दे रहे। रीजन मैं बताऊंगी आपको। तो युधिष्ठिर महाराज वाज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, कहते नहीं नहीं बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बहुत गलत किया ये सब। तो क्या होता है, बट महाराज युधिष्ठिर would not be satisfied even though he was instructed by great personalities of the time. Krishna is designated herein as the performer of superhuman actions. But in this particular instance, neither he nor Vyasa could convince King Yudhishthir. अब यहाँ पे ना तो व्यासदेव कन्विंस कर पा रहे हैं और ना तो युधिष्ठिर महाराज। As super soul of King Yudhishthira, he did not allow the king to be convinced by the words of Vyasa and others, including himself, because he desired that the king hear instruction from dying Bhishma Dev. देखा, ये कारण था। Was another devotee. तो भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस होने दिया अंदर से? मैंने बोला ना, परमात्मा रूप में, तो वो तो चाहते थे कि, वो तो बाहर से बोल रहे थे कि कन्विंस हो जाए, क्यों नहीं होने दिया? बिकॉज ही वांटेड कि युधिष्ठिर महाराज किन से सुने? भीष्म पितामह, जो कि शरीर त्यागने वाले हैं, उनसे वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस लें। The Lord wanted that at the last stage of his material existence, the great warrior Bhishma Dev see him personally and see his beloved grandchildren, King Yudhishthira, etc. क्योंकि भीष्म पितामह बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के, और भगवान चाहते थे कि वो मेरा दर्शन करें अंत में, और अपने बच्चों का भी, ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, सबका दर्शन करें। So Bhishma Dev was not at all satisfied to fight against the Pandavas, who were his beloved father's grandchildren. But the Kshatriya are also very stern people, and therefore he was obliged to take the side of Duryodhana because he was maintained at the expense of Duryodhana. देखिए भीष्म पितामह किनके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। उनका पांडवों के प्रति ज्यादा अफेक्शन था rather than being दुर्योधना के पति के साथ। मगर क्षत्रिय थे, अब उन्होंने भी अपनी वाव्स ली हैं। क्षत्रिय आप बहुत अड़ियल होते हैं अपने वचनों से। उन्होंने बोला था कि ये जो कौरव देश का जो भी राजा होगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब किंग शांतनु थे तो उन्होंने बोला था मैं राज्यभार नहीं लूंगा, अगर जो भी यहाँ पे कौरव के यहाँ पे गद्दी पे जो राजा होगा, मैं उसको उसका साइड लूंगा। तो उस समय राजा कौन थे? दुर्योधन। तो भीष्म को ऑब्लाइज्ड होना पड़ा, ही हैज टू बी। वो नहीं चाहते थे मगर फिर भी उनको दुर्योधन की साइड लेनी पड़ी। Besides this, the Lord also desired that King Yudhishthira be pacified by the words of Bhishma Dev, so that the world could see that Bhishma Dev excelled all in knowledge, including the Lord himself. अब ये देखिए, कभी-कभी भगवान अपने भक्तों का गुणगान करवाना चाहते हैं, उनको ग्लोरीफाई करवाना चाहते हैं, तो ऐसे प्लान्स भी करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे भगवान ने खुद अरेंज किया कि युधिष्ठिर महाराज अंत में उनसे उपदेश लें, इंस्ट्रक्शंस लें, और ऐसा पता प्रतीत हो कि जो भीष्म पितामह है वो ज्ञान में भगवान को भी एक्सेल किए। तो इस तरीके से, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अंदर से कन्विंस नहीं करने दिया भगवान। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अह राजा धर्मासुत चिंतयान सुहृदं वदं प्रकृतेनात्मना विप्र स्नेहा मोहावशं गतः। जिन्होंने श्लोका नहीं पढ़ा वो श्लोका रिसाइट कर सकते हैं। अक्षय, रीड द श्लोका। महाराज Mataji, give opportunity to Prabhu's first. Akshay, go ahead. राजा धर्म सुता चिंतयन् शूद्रं वदं
प्रकृतेन नत्र मना विप्रः स्नेहमोह विसङ्गतः। Asta, go ahead. राजा धर्मसुतः चिन्तयन् शूद्रं वदन् प्रकृतेनात्मनं विप्रः स्नेहमोहावसंगतः। King Yudhishthira, son of Dharma, धर्मराज कहा जाता है ना उनको। तो धर्मराज कौन है? हमारे यमराज जी। तो उन्हीं के कुंती महारानी ने जब उनका आवाहन किया था तो उनसे युधिष्ठिर महाराज उत्पन्न हुए थे। So he is the son of Dharma. Overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. कि बोला कि एक राज्य के लिए इन सबका मरना जायज नहीं था। O sages, thus deluded by affection, he began to speak. अब युधिष्ठिर महाराज क्योंकि affection से afflicted थे, तो he was like, now he began to speak. तात्पर्य में प्रभात क्या बताते हैं? King Yudhishthira, though he was not expected to become aggrieved like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord. अब युधिष्ठिर महाराज तो ज्ञानी थे, धर्मराज कहा जाता है उनको एक तरह का, तो मगर वो एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों ग्रीव कर रहे थे? He became deluded, वही भगवान की इच्छा थी। जैसे अर्जुन डिल्यूड हुआ, वही भगवान की इच्छा थी कि उपदेश मिले, भगवद गीता का उपदेश सुना सके, तो वही यहाँ पे भी हुआ। A man who sees knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendental to the material conception of life. जो व्यक्ति इतना समझ सकता है कि शरीर और आत्मा में अंतर होता है, उसको ज्ञान है, इसका मतलब है ना। The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. जो साधारण मनुष्य है, और अहिंसा हिंसा किस स्तर पर देखता है? शरीर के स्तर पर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जो अहिंसा है वो आत्मा के स्तर पर होती है, अगर हम उनको प्रचार ना करें तो मृत्यु की ओर ढकेलते हैं, तो वो अहिंसा है। असल में अहिंसा वो है कि मृत्यु की ओर ढकेलना, ठीक है, मतलब कि सही उपदेश ना देना, प्रचार ना करना, ठीक है, तो वो अहिंसा है। कहता है ईशोपनिषद कहता है, वन इज अ सोल ऑफ किलर ऑफ द सोल, वन हु इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो दैट मीन्स वो भी अहिंसा है आत्मा पे। अगर हम लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर नहीं है तो अपनी ही आत्मा को मार रहे हैं, मगर जैसे भगवद गीता में पढ़ते हैं, आत्मा तो मरती नहीं। मतलब ये है इसका कि we remain on the cycle of birth, death, old age and disease. We force the soul to get into the another womb. तो उस प्रकार से तो everyone is duty bound according to one's occupational duties. A kshatriya is bound to fight for the right cause. कि हर कोई अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से बाउंड है अपना कर्तव्य करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो क्षत्रिय का तो कार्य ही लड़ना है, ठीक है, ताकि ये जितना है वन शुड that is for the right cause, he has to fight. In such discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of material body, which is only an external dress of the living soul. तो ऐसे कार्य में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो शरीर है ये तो सिर्फ आउटर कवरिंग है ना, एक्सटर्नल ड्रेस है। All this was perfectly known to Maharaj Yudhishthira, but by the will of the Lord, he became just like a common man, because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma as Arjuna was instructed by the Lord himself. मगर भगवान देखिए, भगवान युधिष्ठिर महाराज को ये सब ज्ञान पता था, मगर मैं क्यों यहाँ पे ऐसे बातें कर रहे हैं डिल्यूजन वाली? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि ताकि वो भीष्म पितामह से उपदेश ले सके। He should take a learning from him, teachings from him, like Arjuna was bewildered, so that Lord can instruct him for the benefit of all general people like हम सबके लिए। तो that was the reason Yudhishthir Maharaj was deluded. अहो मे पाश्यता जानहं हृदि रुधं दुरात्मना पराकाश्यैव देहस्य भावो मे शोनिरथा। King Yudhishthira said, "O my lord, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for others, has killed many phalanxes of man." युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं कितना पापी अधर्मी व्यक्ति हूं। जस्ट मेरा हृदय देखो कितना अज्ञानता से भरा है, कि दिस बॉडी जो कि अल्टीमेटली दूसरों के लिए बनी है, कितने लोगों को मार गई। कितना अधर्मी व्यक्ति हूं मैं, ऐसे कोस रहे अपने आप को। A solid phalanx of 21,870 chariots, 21,870 elephants,
1,09,650 inventory and 65,600 cavalry is called an अक्षौहिणी. अक्षौहिणी मतलब जो सेना है, तो ये इतने लोग थे उसमें, इतनी चीजें थी उसमें, रथ थे, हाथी, इन्फेंट्री, कैवलरी. Many Akshunis were killed on the battlefield of Kurukshetra. तो ये एक अक्षौहिणी का काउंट है. इस तरह के कई अक्षौहिणी इस युद्ध में मारी गई. तुम्हारा Yudhishthira, as the most pious king of the world, takes for himself the responsibility for killing such a huge number of living beings, because the battle was fought to reinstate him on the throne. तो युधिष्ठिर महाराज इन सबका अपने पे लेते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि राजा कौन बना, खुद बने ना, ये तो मेरी वजह से हुआ ये सब. This body is after all meant for others. While there is life in the body, it is meant for the service of others. When it is dead, it is meant to be eaten by dogs and jackals, or my gods. He is sorry because for such a temporary body, such a huge massacre was committed. तो बोले ये जो शरीर है ये कभी हमारे लिए नहीं होता, ये दूसरों के लिए है, सेवा के लिए. जब तक जीवित है तो सेवा करे. जैसे भगवान की सेवा में हम लगते हैं, भक्तों की सेवा में लगते हैं, तो सेवा के लिए. जब मर जाएगा तब भी सेवा में जाएगा, कुत्ते और जैकल्स उसको खाएंगे, है ना. कहते मगर उनको इतना बुरा लग रहा है कि बस एक टेम्परेरी शरीर के लिए इतना बड़ा मैसेकर हुआ, इतने लोग मारे गए. That was, he was into so much grief. बालद्विजासुरन्मित्र पितर्भर्ते गुरुद्रुहा नामेशं निरयन् मोक्षो हि अपि वर्षयुक्तयुता. I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. Though I live millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me for all these things. कहते मैंने कई लड़कों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, well-wishers, मित्रों, बंधुओं, पेरेंट्स, preceptors, brothers, और मैंने अभी मिलियन ईयर्स तक जीना है, तो मेरे को नर्क वेट कर रहा मेरा, मेरे पापों के लिए. Whenever there is war, there is certainly a massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmana, and women, whose killing is considered to be the greatest of sin. अब देखिए बड़ा युद्ध होता है तो बेचारे इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं उसमें. सो जो कि पाप माना जाता है, ब्राह्मण, स्त्री, ये तो डिपेंडेंट होते हैं ना. They are dependent on other people, so they also get killed. They are all innocent creatures, and in all circumstances. अभी तक उठाया ही नहीं होगा Krishna. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing of them is forbidden in scriptures. क्योंकि innocent dependent होते हैं, स्त्री, पुरुष, स्त्री, बच्चे, और जो ब्राह्मण है ये dependent होते हैं. You know, they are person, they are dependent on the others. They are innocent people, और उनको मारना किसी भी परिस्थिति में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है. Maharaj Yudhishthira was aware of this mass killing. Similarly, they were friends, parents, preceptor also on both sides, and all of them were killed. दोनों की साइड में थे. It was simply horrible for him to think of such killing. वो सोच के इतना उनको ट्रॉमा में जा रहे थे. He was thinking of residing in hell for millions and millions of years. सोच रहे इस वजह से मुझे नरक में कई जन्मों तक रहना पड़ेगा. नैनो राजना प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधोदिशम इति मेना तु बोधया कल्पते शासनम वचा. There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens, but this injunction is not applicable to me. अब ये भी पता है कि अगर राजा किसी अच्छे कार्य के लिए और who is engaged in maintaining his citizens, अच्छे कार्य के लिए अगर मारता है और अपने सिटीजन्स प्रजा के पालन के लिए, तो उसको ये पाप नहीं लगता. ये भी उनको पता था. Maharaj Yudhishthira thought that although he was not actually involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhana, without harm to the citizens, he caused the killing of so many living beings only for his personal gain of the kingdom from the hands of Duryodhana. तो बोला कि मैं तो किंगडम में राजभार में इन्वॉल्व भी नहीं था, दुर्योधन राजा था और किसी सिटीजन्स को कोई तकलीफ भी नहीं थी, तो मगर फिर भी अपने राज्यभार के लिए मैंने दुर्योधन का वध किया. The killing was committed not in the course of administration, but for the sake of self-aggrandizement, and as such he thought himself responsible for all the sins. फिर से उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पर्सनल चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो कुछ था नहीं करना, तो मैंने अपने लिए किया, तो अगेन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस पाप कर्म के लिए. स्त्रीणां मद्धात बंधुनं द्रोहो स इहोत्थिता
कर्म भेग्रम धीयार नाहम kalpo vipihitam. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare of work. मैंने ऐसे मित्रों को भी मारा है, अब किसी भी तरीके से मैं ये मित्रता नहीं कर सकता, इस एनमिटी इतनी बढ़ चुकी है। तो तात्पर्य प्रपद बताते हैं, the griha medis are those who only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. तो दो एक टर्म आती है, गृहस्थ और गृह मेदी। गृहस्थ वो है कि भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हुए अपनी जीवन का निर्वाह करे, गृहस्थ घर वालों के साथ में चले। और गृह मेदी का कार्य क्या है? सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए वो कार्य करता है। Such material prosperity sometimes hampered by sinful activity. For the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duty. अब भौतिकवादी हैं, वो तो पाप हर जगह करते हैं क्योंकि वो अपने इंद्र सुख के लिए कार्य करते हैं। To get relief from such sinful reaction, the Veda prescribes several kind of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Ashwamedha Yagya, horse sacrifice, one can get relief from even Brahma Hatya. तो इस तरह पापों के लिए कई इंजंक्शन है वेदा में कि जिससे क्या इंसान इन पापों से मुक्त हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज परफॉर्म दिस अश्वमेध यज्ञ, तो उन्होंने ये यज्ञ किया horse sacrifice कि मैंने भी पाप किया। फोन नहीं आया, कोई बाहर है मामा, बट ही थिंक्स दैट इवन नहीं आया फोन, कबाड़ी वाला। He thinks that even by performing such yagna, it is not possible to get relief from great sins committed. Involve either the husband or the brother, or even the father or sons to go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created. He thinks that even by performing such yagna, it is not possible to get relief from great sins. बेशक मैं ये आगे भी कर लूं तभी मैं पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। Involve either the husband or the brother, even the father or son, सब लड़े वहां पे। When they were killed, a fresh enmity is created. अब नई दुश्मनी पैदा हुई। Thus a chain of action and reaction increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedha yajna. अब देखिए, अब आपकी एक व्यक्ति से दुश्मनी है, उसको आपने मार दिया, उसके आगे भी तो बच्चे होंगे, अब उससे नई दुश्मनी पैदा होगी, लेकिन उनको मारा और नई दुश्मनी और, तो दिस रिएक्शन। तो बोले इस तरीके से मैं 1000 यशमय यज्ञ भी कर लूं, ये तो खत्म नहीं होने वाला। The way of work, karma is like that. तो कर्म इस तरीके से unending cycle है ये, action reaction का। It creates one action, another reaction simultaneously, and thus increases the chain of material activity, binding the performer in material bondage. तो action reaction भी इस तरीके से chain है, बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होता, और बॉन्डेज क्रिएट करता है। भगवद गीता 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में बताया जाता है, the remedy is suggested that such action and reaction of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. ये कहते हैं कि ऐसा एक्शन रिएक्शन खत्म कब हो सकता है? जब कार्य केवल भगवान के लिए किया जाए। The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of this Lord Krishna. अब ये जो कुरुक्षेत्र की युद्ध था, ये तो भगवान की इच्छा थी, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Hastinapur. और उन्हीं की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर को राज्यभार सौंपा गया। There of actually no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. अब देखिए, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए तो पाप नहीं लगता, अब चाहे वो किसी को मारना ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान का स्वयं का आदेश है। तो अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई लड़ रहा होता तो हाँ, फिर वो रिस्पॉन्सिबल था, मगर यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं हुआ, भगवान की इच्छा अनुसार जो हुआ तो हुआ। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को पाप नहीं लगना चाहिए, इसलिए पांडव पाप रहित थे, मुक्त थे वो। यथा पंकेन पंकभा सूर्यवासुराकृतं भूतहत्यं तथैवैकं नाज्यजनिर्मर्तुम् अर्हति। As it is not possible to filter muddy water through mud or purify a wine-stained sport with wine, it is not possible to counteract the killing of man by sacrificing animals. तो युधिष्ठिर महाराज क्या उत्तर देते हैं? It is not possible to filter muddy water through mud, कि मिट्टी से आप मिट्टी वाले गंदे पानी को साफ नहीं कर सकते, और purify a wine-stained pot with wine, कि जिसमें शराब लगी है पोट में, उसको वाइन से साफ नहीं किया जाता।
इसी प्रकार इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंटरैक्ट द किलिंग ऑफ मैन बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स। अब जानवरों को ही तो माना जाता है ना यज्ञ में, तो एक बार ऑलरेडी मनुष्य को मारा हुआ, अब जानवरों को मार के तो ये क्या काउंटरैक्ट होगा? नहीं होगा, ऐसा बहुत तर्क दे रहे हैं यहाँ पे। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed, तो उनको मारा जाता है। were not of course for the purpose of killing the animal, obviously उनको मारने के लिए नहीं मारा जाता, that is some different thing. Lord Chaitanya said such animals sacrificed on the altar of yajna were rejuvenated and a new life was given to them, उनको तो नया जन्म मिल जाता है। तो ये नहीं कि उनकी सच में हत्या कर दी जाती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, नहीं नहीं, जैसे स्लॉटर हाउस में तो ऐसा नहीं होता, उनको नया जीवन दे दिया जाता है। It was just to prove the efficiency of the hymns of the Vedas, कि animal sacrifice जो होता है कि ब्राह्मण कितने qualified है मंत्र recitation में, कितने शक्तिशाली, इसके लिए वो टेस्ट के लिए ये सब किया जाता है। By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer get the relief from the reactions of sin. But in case of such sacrifices improperly done under inexpert management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. तो अगर proper recitation ना हो, सही तरीके से ना किया जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है जानवरों को मरने के लिए, क्योंकि वो रिजिमिनेट नहीं होंगे ना फिर। इन दिस, इसीलिए इस एज में, कलयुग में, एनिमल सैक्रिफाइस क्या प्रोहिबिट है। इन दिस एज ऑफ quarrel and hypocrisy there is no possibility of performing yagna perfectly for want of expert brahmana who are able to conduct such yagna. So Maharaj Yudhishthira therefore gives a hint to performing sacrifice in the age of Kali. In the age of Kali, the only sacrifice recommended is the performance of Harinam Yagna, inaugurated by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो इसलिए कलयुग में ये जो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ क्या है? यज्ञ ही मना है, एक ही यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के लिए एक तो सामग्री शुद्ध नहीं, ब्राह्मण प्रॉपर नहीं है जो प्रॉपर उच्चारण कर सके, तो इसलिए एक ही यज्ञ रिकमेंडेड है, हरे नाम यज्ञ, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यथा, सिर्फ हरि नाम यज्ञ बोला गया। अब हरि नाम यज्ञ में अगर हरे कृष्ण महामंत्र से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे, स्टिल उसका बेनिफिट है, ठीक है। So those who are devotee of the Lord never kill an animal for self-interest, and as the Lord ordered Arjuna, they do not refrain from performing the duty of a Kshatriya. The whole purpose therefore is served when everything is done for the will of the Lord. This is possible only for the devotees. कि अगर कोई भी कार्य भगवान की इच्छा से की जाए, तो जो भक्त है वो कभी भी पाप नहीं लगता उसको, वो मुक्त है, ठीक है। तो वही यहाँ पे तात्पर्य बताते हैं। So thus and the Bhakti Vedanta purport of the first canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Prayers by Kunti and Parikshit Maharaj saved. तो आज शनिवार भी है, आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ, तो मंडे से आगे हमारा आई थिंक भीष्म पितामह की प्रेयर्स हैं, तो किस तरीके से वो उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आगे का कि भीष्म पितामह किस तरह से पास ऑन करते हैं। सो that will be there. So अभी के लिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, तो कुछ बोलना हो तो आप प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। Any questions or realizations? So please go ahead. If nothing, then we can stop. माता जी दीक्षा के टाइम Asa, please be little loud. जब दीक्षा होती है, हरे कृष्ण, जब क्या होती है? दीक्षा, इनिशिएशन, इनिशिएशन, यस। तो तब यज्ञ क्यों किया जाता है? सिर्फ वही यज्ञ किए जाते हैं माता जी, एक है इनिशिएशन यज्ञ किया जाता है कलयुग में, एक विवाह यज्ञ होता है और एक हरिनाम यज्ञ, बस इन्हीं को ही बोला गया है। क्योंकि जो दीक्षा यज्ञ है उसमें हम लोग दैट इज आल्सो फॉर्मल इनिशिएशन, वी आर एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो दैट इज रिकमेंडेड विवाह यज्ञ, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन का आवाहन होता है, तो सिर्फ यही यज्ञ है कलयुग में, बाकी सारे यज्ञ क्या मना किए गए। इवन इन यज्ञ में भी जब ये यज्ञ होते हैं तो आपने देखा नहीं, जब इनिशिएशन यज्ञ होता है तो ब्रह्म संहिता प्रेयर रिसाइट की जाती है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा होता है, सो इन दैट वे मंत्र, बाकी तो कुछ उच्चारण नहीं होता। और जब विवाह यज्ञ होता है तो उसको भी वैष्णव हिसाब से करना चाहिए जब यज्ञ हो रहा हो, क्योंकि मंत्र उच्चारण तो पंडित तो वो तो ऐसे रिचुअल कर रहा होता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए डिवोटी मैरिज इज रिकमेंडेड। सो इस तरह से कीजिए, तो दैट इज ऑल प्लीजिंग फॉर द लॉर्ड। फाइन माता जी, तो दीज यज्ञ आर डन, ये किया जाता है, और अल्टीमेट यज्ञ इज द हरिनाम यज्ञ। तो जैसे जब कृष्ण बलराम मंदिर को डीटी इंस्टॉलेशन था,
तो वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए, ये ऐसे वैसे यज्ञ होता है। तो प्रभुपाद ने, क्योंकि यू डोंट वांट कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो, तो बोला ठीक है इनको करने दो, मगर पीछे से भक्तों को बोला कि हरिनाम संकीर्तन चलते रहना चाहिए, क्योंकि डीटी इंस्टॉलेशन के डिफरेंट यज्ञ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरिनाम यज्ञ की जरूरत है हर चीज के लिए, बिकॉज हरिनाम संकीर्तन itself is a very good yajna that can give all the fruits. So that was Hare Krishna. Fine, आस्था माता। मेरा क्वेश्चन था कि माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि उसका पर्पस क्या होता है, मतलब ये यज्ञ होता है उसका। As it is already known, Mataji, initiation yajna, that you're in the front of Agni, you're taking a vow, you know, to या आप वचन लेते हो, आप वाव ले रहे हो, और उस यज्ञ में अपने जितने भी जो पाप है, हमारे पुराने कर्म है, वो उसमें जल जाते हैं। गुरु अपने पे ले लेते हैं, जो पुराने जो यज्ञ हमारे जो पुराने कर्म होते हैं, वो सारे गुरु उस समय उस अग्नि के समक्ष ये सारे कर्म अपने पे लेते हैं, और हमें एक नया जीवन मिलता है, उस समय एक नया बर्थ होता है हमारा, और दैट्स हाउ वी टेक अ वाव आल्सो इन फ्रंट ऑफ यज्ञ। सो दैट्स हाउ द यज्ञ वाज परफॉर्म्ड। Otherwise, initiation it's an informal thing, formal kind of है यज्ञ करना, it's an heart to heart connection, but that is done कि आहुति में हमारे जो जितने भी पुराने कर्म हैं जाते हैं, तो like that। इसलिए इनिशिएशन इज वेरी हैवी थिंग कि गुरु देखिए आपके सारे कर्मा लेते हैं, तो इसलिए कभी उनको चीट मत कीजिए, बी लॉयल टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज दे आर टेकिंग योर ऑल कर्मास। कौन आपके बुरे कर्म लेना चाहेगा? कोई भी नहीं, तो गुरु लेते हैं ताकि आप भक्ति में वृद्धि कर सके। लिखा है ना भगवद गीता में कि जब हमारे कोई व्यक्ति जब पूरे पाप कर्मों से मुक्त होता है, वो भक्ति कर सकता है। तो गुरुजन हमारे सारे कर्मा लेते हैं, so that we are able to do the bhajan, understood, so that we get purified and able to do the bhajan, like that। yes, और कुछ? नो मत। और किसी कुछ कहना है? हरे कृष्ण। anyone else having any questions? रामायण रीडिंग से पहले कॉल कर देना ना, मतलब भूल ही जाते हो। रामायण रीडिंग माता जी हम लोग अब रात को ही किया करेंगे, that what I feel, because daytime I study भागवतम at that time and I don't want to stop in middle। तो मैं 5 बजे तक 5 साढ़े 5 तक मैं फिर भागवतम ही पढ़ती हूँ अपना। तो 3 बजे I start my भागवतम, तो 3 to 5:30 I read my भागवतम now। So Ramayana I think कि after Bhagavad Gita class we can study for some time। It will be good, सोने से पहले थोड़ा भगवान राम जी के बारे में पढ़े, so I think that will be good। थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ सकते हैं, if you all people don't mind it, is it fine? fine आस्था? रात को थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, रात को थोड़ा गड़बड़ हो जाता है माता जी। एक्चुअली दिन में समय तो होता है, बट थिंग इज आई हैव सम सर्विसेज आल्सो टू कैरी ऑन विद, आई कैन मैनेज अप द टाइम, अगर वो टाइम आप लोगों को नहीं करता है तो फिर वो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी, क्योंकि वो आप लोगों को टाइम मैनेज नहीं कर पाता, बिकॉज इन आफ्टरनून अराउंड 1 or 2 आई वाज लिटिल फ्री, समय रहता है मेरे पास, क्योंकि अब 3 बजे तो आई हैव फिक्स द टाइम फॉर माय भागवतम स्टडी, सो आई डू रीड माय भागवतम फ्रॉम 3 to 5:30, तो 2-2.5 घंटे आई लाइक टू रीड माय भागवतम, कम से कम 2 घंटे तो पढ़ो। तो वही फिर एक रात का समय होता है क्लास के बाद, क्योंकि मेरा सब सारी सेवाएं वगैरह हो चुकी होती है, तो रात को मेरे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं जल्दी सोने चले जाऊँ, या तो आई शुड रीड समथिंग, सो आई थॉट रामायण आई कैन रीड फॉर सम टाइम, 9 बजे तक थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यस, सो अभी डे टाइम आई वाज नॉट एबल टू गेट मच टाइम, क्योंकि आप लोगों को भी टाइम होता नहीं है उतना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। So in night time, whoever would like to join, they can join for Ramayana reading immediately after Bhagavad Gita class. So 15-20 minute के लिए whatever the time one can join. ठीक है? Okay, so any of you still, if it is possible for me to manage the time in middle, I will let you know on. Okay? We'll give a call. किसी और को कुछ कहना है? कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस पूजा माता जी। माता जी क्वेश्चन था कि जब ये मतलब बैटल हो रही है, तो मतलब कुंती महारानी जी मतलब जैसे पूरी बैटल खत्म हो गई फिर भीष्म पितामह जी के पास गएंगे? हाँ जी,
कि भीष्म पितामह अभी उनको इच्छा मृत्यु का वर था ना, सब लोग मर चुके थे, भीष्म पितामह अभी जी 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 तीरों की शैया पे थे, वो शरीर त्यागने वाले थे अपना, he was about to leave his body. एंड माता जी वो जो मतलब दुर्योधन की जब डेथ हुई थी तो वो एंड में बाद में हुई थी या पहले भीष्म पितामह जी की हुई थी? भीष्म पितामह की बाद में हुई थी। वो जब अश्वत्थामा था, देवर किल, अश्वत्थामा वगैरह अश्वत्थामा को जो तो थे वो मारा सब। क्या था, उसका तो वही उसको अपमान करके छोड़ दिया था ना। जी 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 और अच्छा, वो दुर्योधन सब को पहले तो हो मार चुका दिया है, गया था तभी युद्ध मैं में। सोच रही थी, आई गॉट कंफ्यूज्ड अभी बाद अब सिर्फ भीष्म पितामह क्योंकि का आई थॉट कि वो सब बाद में हुआ था। हाँ। हेलो, और कोई ओके प्रश्न ओके, है? आई थॉट कि ये सब हाँ? मतलब भीष्म पितामह जी पहले चले गए थे। नहीं नहीं, ठीक है, क्या मुझे हुआ? लगा कि शायद भीष्म पितामह जी पहले चले गए थे, वन तो फिर सेकंड। इसीलिए वो मैं क्या मुझे लग रहा था कि शायद भीष्म पितामह जी नहीं नहीं, भीष्म पितामह ने बाद में एंड में छोड़ा था। He wanted to see, तभी तो ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहता। I still I'll ठीक है confirm. माता But I think he left his body in the end. But still, जी। वैसे जैसे अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा था, इसके हिसाब से तो सारे लोग मर चुके हैं, कोई था नहीं, तो भीष्म पितामह ही एंड में थे, जो तीरों के शैया जी में थे। जी He was also about to leave, मगर उनको इच्छा मृत्यु का वर था, तो अपनी इच्छा से ही मरेंगे, तो इसलिए he was waiting for the right time, भगवान के दर्शन करना चाहते थे। So after जी भीष्म पितामह left, और युधिष्ठिर महाराज को राज्य पे भीष्म पितामह ही इंतजाम करके जाते हैं। वो मरते मतलब ठीक by leaving his ठीक है body, माता he enthroned युधिष्ठिर महाराज, उनको ज्ञान देके जाते हैं। तो he left at the end. ठीक है माता जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। Okay, if nothing, so we'll stop here. So let's chant the time Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, कृष्णा Rama, हरे हरे, Rama हरे Rama, राम हरे Hare रामा Hare, हरे रामा, Hare Krishna, राम रामा हरे हरे, Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे Rama, Hare Rama, कृष्णा हरे Rama हरे, Rama, हरे Hare रामा हरे रामा, Hare राम Krishna, रामा हरे हरे, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare कृष्णा Rama, हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे रामा, ग्रंथराज श्री राम भागवतम की हरे हरे। जय, श्रीपाद की जय, जय all the Samara devotees की जय. जय Thank you so much. See you all in the evening. जय। Hare Krishna everyone.